Hello everyone. I hope all of you have done very well. Let's see the solution of set number 3. Question paper was average, but the numerical portion was what could be the difficult numerical out of your syllabus and what the questions are within from the NCERT. This is the good thing. So if you have practiced the difficult numericals of your NCERT, then you might have cracked them. Let us see. The first question is set number 3. This is question number. With increase in atomic number, the melting point of transition metal. So first increases and then decreases. I hope all of you have done the option A is correct. Let's see question number 2. Which of the following aqueous solution will have the highest osmotic pressure? इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा है, ये आपसे जानने की कोशिश की है. सो 1% CaCl2 will have the highest osmotic pressure. Let's see the next question. This is third one. The conductivity cell usually consists of inert electrode, that is platinum electrodes. Option B is correct. Which of the following is the slope of the first order reaction in the plot natural log R versus time? So it is minus K. Which of the following represent the fraction of molecule with energy is equal to or greater than activation energy? That is option B, exponential minus EA by RT. Question number sixth. The number of moles of AgCl precipitated when AgNO3 solution is mixed with 1 mole of this complex. So it will give 3 Cl negative ions. So it will give 3 moles of AgCl. Option B is correct. Question number 7. Which of the following haloalkane is most reactive toward SN2, SN1? इतने आसान MCQs दिए कि बच्चा अगर मिस्टेक करना भी चाहे तो उससे होगी नहीं. तो SN2 हो आइदर और SN1 हो, दोनों में जो रिएक्टिविटी है वो आयोडाइड वाले की ज्यादा होगी. दैट इज CH3CH2I, बिकॉज I is a better leaving group. So question number 7, A option is correct. Question number 8. The reaction of phenol with sodium hydroxide के सोडियम फिनॉक्साइड, अगर कोई भी कंपाउंड किसी बेस एल्कली से रिएक्शन कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे फिनॉल NaOH से कर रहा है, तो ये क्या प्रूव कर रहा है? इट शोज दैट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर. क्वेश्चन नंबर 9. कंसंट्रेटेड HNO3 से फिनॉल की रिएक्शन करनी है, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है. पिक्रिक एसिड यू विल गेट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल which is highly acidic than acetic acid. That is why its name is called picric acid. Question number 10. Aluminium hydrogen sulfate on heating, so it forms sulfanilic acid. Question number 10, the option is correct. Which one of the following amines does not give foul smell? So primary में जो नहीं होगा वो नहीं दे पाएगा. Question number 11, C option is correct because it is a tertiary amine. Rest of the amines are primary. Deficiency of vitamin B1 causes, B1 की कमी से बारी बारी डिजीज हो जाता है. मम्मी कंप्लेंट करती है डॉक्टर को, हमारे बच्चे को, मेरे लाल को भूख नहीं लगती, तो डॉक्टर बी कॉम्प्लेक्स देता है सो दैट एपेटाइटिक अपील कैन बी इंक्रीज. क्वेश्चन नंबर 12, बी ऑप्शन वेरी वेरी इज करेक्ट. Let's see the assertion reason. A mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol can be separated by fractional distillation. True. सही है स्टेटमेंट. Orthonitrophenol is steam volatile due to intra. बिल्कुल ठीक बात है. Assertion reason both are correct. So A is correct. Question number 13 का option A is correct. Assertion reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion. Question number 14, assertion A. Aquatic species are more comfortable in cold water than warm water. बिल्कुल सही बात है. Solubility of oxygen gas in water decreases with increase in temperature. ये बात भी बिल्कुल ठीक है. तो इसका explanation भी यही वाली बात है. जितना ऑक्सीजन अच्छे से सॉल्युबल होगी लो टेम्परेचर पर, उतना ही रेस्पिरेशन में कंफर्ट रहता है मैरानी स्पीशीज को. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15. First ionization enthalpy of Cr is lower than that of zinc. फर्स्ट ionization enthalpy क्रोमियम की नहीं, जिंक की लोअर होगी, है ना. तो assertion is wrong. जिंक इज अ नॉन ट्रांजिशन मेटल, ये बात सही है. तो assertion is wrong, रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट. और ऐसा होने के लिए लेट्स सी क्या ऑप्शन हो जाएगा.
assertion is false but reason is true. So ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन आपका ठीक होना चाहिए। विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, बिल्कुल सही। assertion रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ लिक्विड सॉरी ए एंड बी लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग शोज राइज इन टेम्परेचर, ठीक है जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। विच टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज देयर एंड व्हाई, तो नेगेटिव डेविएशन होगा, क्यों होगा, बिकॉज जो ए इंटरेक्शन है दैट वुड बी वीकर देन द ए बी इंटरेक्शन। ए बी इंटरेक्शन कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्गर होगा, तभी तो जो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बी, व्हाई कैन एज़ोट्रोपिक मिक्सचर नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है ना, बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं व्हिच बॉयल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आप इसमें लिख सकते हो कि दे फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इंटरेक्शन एट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन, और जो इसी वजह से इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। कुछ और एक्सप्लेनेशन भी शायद चार, और देखिए मार्किंग स्कीम जब आएगी तो पता चल पाएगा, बट इट इज सफिशिएंट कि व्हाई कैन एजेटोपिक मिक्सचर नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिकॉज दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एंड एट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन, लाइक इन अल्कोहल वाटर में आप देखते हैं 96% कंपोजिशन पर जो है इनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कि एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, और जब बॉयल करेंगे तो दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉयल कर जाते हैं। लेट्स सी और क्या डिमांड इनकी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। Why is molecularity applicable only for elementary reaction and order is applicable for elementary as well as कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन होती है भाई जो एक ही स्टेप में, तो जो ऑर्डर होगी भाई मॉलिक्युलरिटी हो जाती है वहां पर। लेकिन अगर हम बात करें कि मॉलिक्युलरिटी के बारे में, और ये भाई जो ऑर्डर है, बट ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, तो ऑर्डर तो भाई एक एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है ना रेट का, उसमें पावर्स क्या जा रही हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वेयर इज मॉलिक्युलरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब एलिमेंट्री जब एक ही स्टेप में हो रही है तो मॉलिक्युलरिटी भी आप उसी स्टेप से चेक कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर की गारंटी नहीं है ना। ऑर्डर में डाटा क्या लिया हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की क्या पावर्स आ रही है, वो आपको मालूम है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाई इज मॉलिक्युलरिटी एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एंड ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो आप मॉलिक्युलरिटी के बारे में बताएंगे। इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कैन बी चेक, थियोरेटिकल मतलब एक्सपेरिमेंट तो किया जाता है, बट इफ यू नो द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन यू कैन सी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग एंड यू कैन टेल द मॉलिक्युलरिटी, बट ऑर्डर के लिए इट इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सी राइट। So question number 19, write two differences between DNA, RNA, ATGC, AUGC, deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, और जो भी आपको आता है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन केमिकल डिफरेंस लिखेंगे तो अच्छा रहता है। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो ये C फॉर क्लोराइडो है और ये E फॉर इथेन 1,2 डाइअमाइन, तो अल्फाबेटिकली C पहले आएगा, तो डाइक्लोराइडो बिस डैश इथेन 1,2 डाइअमाइन प्लेटिनम 4 जो है इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने, आपको मालूम है तो डाइडेंटेड लिगेंड, तो ऐसा आप बना सकते हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर आपको बनाने को बोलेंगे तो आप ऐसा बना दो भाई, है ना। ये जरा एक मिनट रुकेंगे, इसमें आप जो है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें आप ऐसा बना सकते हो। CL आपको कौन सा बनाना है, ओ सो सॉरी, देखो भाई इसमें स्पेशली पूछा भाई विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो यू नीड टू फॉर्म अ ट्रांस, ये ध्यान रखिएगा। आपने दोनों बना देंगे तो एग्जामिनर शायद नंबर दे दे, लेकिन इन्होंने पूछा केवल बेटा एक ही आपको है, तो अच्छा रहेगा कि आप केवल ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले के बारे में इनको बताओ। तो जिसमें आपका ये CL 180 डिग्री पहुंच जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट पहुंच जाएंगे, ट्रांस वाली जो स्टेट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। लेट्स सी, ज्यादा अच्छा नहीं बना पाया, थोड़ा सा कर्सर की बात है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर चॉइस पार्ट 1।
राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसका आपको फॉर्मूला लिखना है। आई होप सबने सही लिखा होगा। देखते हैं क्या है कंपाउंड। कंपाउंड हमारे पास है पेंटा अमाइन। लीजिए पेंटा अमाइन आ गया आपके पास NH3 का होल 5, राइट। एंड दिस इज कार्बोनेटो। कार्बोनेटो, कार्बोनेटो मीन CO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज रहता है, फिलहाल अभी तो ऐसे ही लिखते हैं। और थर्ड क्लोराइड पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट, राइट। ये कोबाल्ट आ गया हमारे पास, कोबाल्ट भी है ना। और थर्ड क्लोराइड, तो ये तो भाई थर्ड क्लोराइड बोला है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड दे रखा है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। प्लस NH3 का 0 × 5 0 हो जाएगा, मैं नहीं लगा रहा हूँ जल्दी में, है ना। और कार्बोनेटेड कितना -2, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा x। मुझे यहाँ पता करना होगा ना कि यहाँ पे कितना रहेगा, ये x रहेगा। तो ये x कितना आ गया आपके पास, +1 आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या है बाहर क्लोराइड, तो सिंपली Cl आ जाएगा। एक बार रिवर्स भी करके देख लीजिए, अगर फॉर्मूला बना लिया है आपने तो उसका नाम लिख के भी देख लो। पेंटामाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, थर्ड ही आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। राइट द IUPAC नेम ऑफ द लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर कुछ नहीं करना है, NO2 की जगह आपको इसको ऐसे लिखना है, O फेस करना चाहिए सेंटर मेटल एटम को, कोबाल्ट को। तो बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा। ये NH3 का होल 5 ऐसे ही रहने वाला है, ये जगह बच गई ONO, और ये Cl2 बाहर हो जाएगा, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, लिंकेज आइसोमर बनाने थे तो भाई ये एम्बीडेंटेड लिगेंड में ऑब्जर्व होते हैं, तो जहाँ पे जो मोड ऑफ अटैचमेंट लिगेंड का क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। वाई आर हेलोरिन्स लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें तो 4 रीजन आपके पास हो सकते हैं। पहला तो आप रेजोनेंस देख सकते हो कि भाई रेजोनेंस की वजह से जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड हेलोजन इन केस ऑफ हेलोवेरिन्स। दूसरा आप कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज रहता है, वो वाली बात आप लिख सकते हो। तीसरा जो फिनाइल कार्बोकैटायन है वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो आसानी से नहीं टूटता है। और ऑलरेडी जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल वहां क्यों जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है बहुत, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे अप्रोच नहीं करेगा। तो कोई से भी आप 2 या 4, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 रीजन आप लिख दीजिएगा 1 मार्क में। जो पहला पार्ट पूछा वाई आर हेलोरिन्स लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और चारों भी लिख देंगे तो बहुत ही बढ़िया। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन हेलोरिन इंक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि NO2 increases the electron density at ortho and para positions only। सॉरी, इन हेलोएरीन्स जो हेलोजन एटम है, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाएगा, ऑर्थो पर और पैरा पर ही बढ़ाएगा। और जो NO2 फैसिलिटेट्स करेगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एक स्टेटमेंट आता है NO2 क्या करेगा, NO2 फैसिलिटेट्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एंड ये ऑर्थो पैरा पर ही अपना इफेक्ट क्यों दे पाते हैं, क्योंकि जो हेलोएरीन्स में हेलोजन एटम है लाइक क्लोरीन क्लोरोबेंजीन में, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर बढ़ाएगा और पैरा पर बढ़ाएगा। तो इसलिए इनका इफेक्ट आपको ऑर्थो और पैरा पर ही दिखाई पड़ेगा। मेटअप अगर NO2 होगा तो रिएक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करेगा हेलोजेंस की टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डिक्टो पूरी का पूरा NCERT का कॉन्सेप्ट ही एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, कोई भी ऐसी बात नहीं पूछी है जो आपके NCERT के बाहर हो। राइट द नेम ऑफ सेल विच इज जनरली यूज इन इन्वर्टर्स। इन्वर्टर में कौन सा यूज करते हो, लेड स्टोरेज बैटरी यूज करते हो, उसकी रिएक्शन देखनी है एनोड और कैथोड पर। एनोड की तरह आपका यूज होगा स्पॉन्जी लेड, तो उसमें तो ऑक्सीडेशन आप दिखा देते हैं, ऐसे ही स्पॉन्जी लेड दिखा देते Pb2 पॉजिटिव। और ये प्रोसेस कब होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ये एनोड की रिएक्शन मैंने लिख दिया आपके लिए। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर जो ये Pb2 पॉजिटिव आइंस बने हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन शायद 4 हो जाते हैं, मैं देख लेता हूँ अभी। और जो एसिड की वजह से H पॉजिटिव आइंस हैं, वैसे तो यहाँ पर ये Pb2 पॉजिटिव बना है, ये भी H2SO4 से सल्फेट आयन गेन करके लेड सल्फेट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। और जो ये कैथोड पर Pb2 पॉजिटिव आयंस बने हैं और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, दे विल मूव टू कैथोड, और कैथोड पर आगे कौन मिलेगा इनको, H पॉजिटिव आयंस मिलेगा और सल्फेट आयंस भी मिलते हैं। तो वहां पे ये भी लेड सल्फेट में अल्टीमेटली डिपॉजिट हो जाता है। तो जो भी रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी में पढ़ी है उसको आपको लिखना है। एनोड और कैथोड पर, एनोड पर पीवी का ऑक्सीडेशन हो रहा है बेसिकली Pb2 पॉजिटिव में,
और कैथोड पर जो Pb2 पॉजिटिव है, सॉरी कैथोड पर तो लेड PbO2 होता है ना, सॉरी कैथोड पर होता है बेटा PbO2, सो सॉरी। तो ये PbO2 जो है, ये Pb2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे वहां पर, और ये PbO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PbSO4 में, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा लेड का, +2। तो यहाँ पे +4 है, वहां पे +2, उस हिसाब से आपको लिखना है, एनसीईआरटी देख के याद किया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl के SH2 गैस एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड। तो भैया तीसरी बार लगातार 22, 23, सॉरी 23, 24, 25 3 इयर्स रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये इतना फेवरेट हो चुका है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ओवर पोटेंशियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओवर पोटेंशियल, और उसी के हिसाब से इसको आपको आंसर करना है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो काफी कुछ आपको लिखना होगा। और ओवरऑल रिएक्शन आप लिखें, ई नॉट वैल्यूज में दे रखी, आपको मालूम होना चाहिए कैथोड पर दैट कैटायन विल गो विच हैज हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड पर कौन जाएगा विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो इनका क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है कि भाई देखो रिडक्शन, जैसे हमने कहा कि एनोड पे कौन जाएगा, विच हैज द लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो जाना किसको चाहिए, यहाँ पर O2 को जाना चाहिए था इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन कौन गया, क्लोरीन। तो ये क्या वजह है, बिकॉज यहाँ पर जो ओवर पोटेंशियल है वो इसका रीजन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन गैस आपको मिल जाती है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन नीड्स ओवर पोटेंशियल, यानी कि रिएक्शन आपको हायर पोटेंशियल पे ऑब्जर्व हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें ओवर पोटेंशियल की वजह से क्लोरीन जीत जाएगा और ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी एनोड पर। 23 देखेंगे, 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसको देखो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। फॉर्मूला वही पुराना, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W। थोड़ा डाटा बदला है एनसीईआरटी में, मुझे लगता है इन्होंने, बाकी सब तो वही है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.4 डिग्री सेल्सियस है, तो इतना ही भैया केल्विन में भी हो जाएगा। 0 माइनस करोगे आप, या 273 ऐड करके करोगे, या अगर डेल्टा TF आई की वैल्यू तुम फाइंड करो, आई की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, बात को निपटते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। KF तुम्हारे पास 5.12 है, और स्मॉल w तुम्हारे पास 0.3 ग्राम है, 1000 फॉर्मूले से आ गया आपका। एंड मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन 60, और मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन 30। तो इस हिसाब से आपका जो आई की वैल्यू है कैलकुलेट करने के बाद जो है लगभग लगभग आपको आ जाएगा 33 ये सब आ जाएगा आपका 0.527 आ जाना चाहिए, 0.527, ठीक है। और फिर तो आपको मालूम है टाइमर बना है भैया, मैं जल्दी से करते हैं। ये बेंजोइक एसिड है, ये इसका 1/2 बन गया। ये अगर 1 है तो ये 0 है स्टार्टिंग में, ये अगर अल्फा ब्रेक किया तो 1 माइनस अल्फा बेटा ये बचा, और अल्फा/2 ये बनेगा, राइट। तो ये आपको मालूम होना चाहिए इक्विलिब्रियम पर जो आई है दैट इज द सम ऑफ ऑल द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो अल्फा/2 तो जो डायमर बना है उसके पार्टिकल्स हैं, और 1 माइनस अल्फा किसके हैं, खुद एसिटिक एसिड के हैं। तो लेट अस सी कितना आ जाएगा, ये आई कितना आ जाएगा, 1 माइनस का अल्फा/2 आ जाएगा ना, ये आ गया। देखिए यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, वैल्यू रख दो भाई, ये अल्फा/2 को ऐसे ही छोड़ो, आई तुम्हारे पास कितना आ गया, अल्फा/2 माइनस का इधर ले जाओ, और आई इधर प्लस का इधर आके माइनस हो, तो 1 माइनस हो जाना चाहिए, 0.527। इसे तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाना चाहिए 0.473, राइट। और भी 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे भी तभी तो अल्फा आएगा। तो अल्फा तुम्हारे पास आ जाएगा बच्चों 94.6। अब तुमसे परसेंटेज पूछा है क्या, कैलकुलेट, हाँ परसेंटेज पूछा तो भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 94.6% हो जाएगा भाई। सॉरी 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 सॉरी, ये 94.6% में ही आएगा, 94.6% ही आएगा, ठीक है। ये तो कुछ ऐसे ही आएगा ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 0.946 आ जाएगा, और तुम्हें कन्वर्ट, ये मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है, तुम्हें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इतना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया था मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका 94.6 आ गया, 2-4 डिजिट ऊपर नीचे हो जाएगी, 2-4 का मतलब है 94.3 हो जाए, 93 में भी एग्जामिनर नंबर आपको दे देगा अगर मेथड आपका सही है। बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल आपके पास है, और क्या चाहते हैं एग्जामिनर से आप।
24 देखिए, कंपाउंड है, लीजिए बताइए। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, हेलो एल्केन हेलोरीन्स का, राइट। तो इसमें तुमसे बोला है कि भाई C4H9 I है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, वही वही क्वेश्चन है, देखिए। बस मुझे लगता है वहां पे Br है, यहाँ पे आई दे दी है, इतना सा फर्क है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का जो आंसर ए हो जाना चाहिए तुम्हारा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ इसको। तुम्हारा जो कंपाउंड है वो ये हो जाना चाहिए, CH3CH, क्योंकि प्राइमरी तो रखना ही रखना है, बोला होगा मुझे लगता है इसमें जरूर, मैंने पढ़ा नहीं पूरा क्वेश्चन। हाँ प्राइमरी बोला है, देखो इसी बात में इसका आंसर छुपा छुपा हुआ भी है। यू गिव टू अल्काइल हाइड एज अ प्राइमरी, तो ये हो जाएगा आपका ए, C4H9Br, C4H3 2 5 6 7 8 9। और इसका ट्रीटमेंट किससे करा रहे हो तुम, एल्कोहलिक KOH से करा रहे हो, यानी कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है। तो ये जिस कार्बन से फंक्शन को डायरेक्टेड है, जो अल्फा, और ये पड़ोसी बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन होता है, ये H और ये Br चला जाएगा, यू विल गेट अ एल्कीन, CH3C, CH3 double bond CH2. This is your compound B. This is compound A. Compound B reacts with HI to give C. वहां पे शायद HBr से कराया है, तो इन्होंने कुछ बोला नहीं है, मतलब जब नहीं बोला है कि, अच्छा बोला भी होता तो भी रिएक्शन नहीं होती भाई। अगर बोला होता तो भी एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होता, यहाँ पे ये चाहते तो कुछ और बढ़िया कर सकते थे, HI इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो क्लास 11 का डाटा ये कंफर्म कर सकते थे, बच्चे को आता नहीं आता, क्वेश्चन और बढ़िया हो जाता। यानी कि अगर परऑक्साइड यहाँ होता भी तो भी परऑक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता, याद है आपको? तुम्हें कहाँ याद होगा, 12th का पेपर दे लिया, बहुत है, ठीक। तो ये आ गया आपका, तो ये आपका कौन हो गया, कंपाउंड सी आ गया। तो सी और ए आइसोमर्स तो है। अच्छा देखो मेरे दिमाग में वही चल रहा है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में वही चल रहा है। लेट्स, मैं यहाँ पे आई दे रखा है ना, तो इट शुड बी आई। मैं देख रहा हूँ आइसोमर कहाँ बना, तो हाँ आई लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया, देखिए अभी आइसोमर्स हो गए, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ए रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, ए की रिएक्शन सोडियम मेटल से करा दो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या बात है, वुड्स रिएक्शन भी पूछ ली, देखो है ना, इसमें वुड्स रिएक्शन भी आ गया। तो कह रहे कंपाउंड डी बनता है, तो बना दिया कंपाउंड डी। कह रहे ये अलग है उस कंपाउंड से जो नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराने पर बनता है, तो हमने तो बना दिया। तो इट शुड बी 1 2 3 4 5, 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो ये सारी रिएक्शंस आपको लिखनी, कंपाउंड आपने पहचान लिया है, आई होप आपने किया होगा। अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्व की है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम लगाई हुई है एनसीईआरटी की, मतलब आपके हिसाब से डिफिकल्ट का मतलब है कि जो जिसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है, एक एवरेज बच्चा उसको नहीं कर पाता, तो उसको हम डिफिकल्टी की कैटेगरी में ले आते हैं, हालांकि डिफिकल्ट कुछ है नहीं, जो आपको आता है वो आसान, जो नहीं आता वो डिफिकल्ट है ना। तो अगर आपने पूरी एनसीईआरटी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आपको पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, लीजिए। और खतरनाक न्यूमेरिकल, मैंने कहा ना, जो डिफिकल्ट मोस्ट न्यूमेरिकल हो सकता है किसी भी चैप्टर का, वो इन्होंने रखा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देखिए सब डाटा लगभग वही है, वैसी स्टेचोमेट्री बन के आएगी, सॉल्ड एग्जाम्पल है। मैं आपके लिए देखता हूँ मिल जाए तो, है ना। और डाटा मुझे लग रहा है कुछ चेंज यहाँ पर लगा, डाटा ये वाला डाटा इन्होंने चेंज किया हुआ है। दिस इज चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में देखता हूँ, लीजिए आगे आपके सामने, अभी पता कर लेते हैं, देखिए। तो थोड़ा स्क्रीन को मैं थोड़ा तेज चला रहा हूँ, आप अपनी निगाह 1 मिनट के लिए हटाइए, मैं जरा वो क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। निगाह अपनी 1 मिनट के लिए हटा लीजिए, स्क्रीन थोड़ा तेज चल रही है, आपको अनकंफर्टेबल होगा। मैं वाला न्यूमेरिकल ले आऊँ जरा एक बार। ये बिल्कुल एग्जाम्पल ही है जहां तक मैं समझ रहा हूँ, कुछ भी इन्होंने डाटा वाटा कुछ चेंज किया तो बात अलग की है, डाटा वगैरह चेंज किया हो तो एक, ये गैसेस फेज में जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप लगाते हो उसकी बात हो रही है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ना, उसी का न्यूमेरिकल उन्होंने दिया है जो हो सकता है। देखिए देखिए आ गया एग्जाम्पल, 3.6 रहेगा आपकी नई एनसीईआरटी के हिसाब से, देखो मैं कह रहा था आपसे, ये 0.512 इन्होंने दिया है, और यहाँ पे 0.625 दिए है, बिल्कुल वही स्टेचोमेट्री है जनाब, बिल्कुल वही स्टेचोमेट्री है। मैं 1 मिनट स्क्रीन पे ले लेता हूँ,
ये देखिए बिल्कुल वही स्टेचोमेट्री है, 2n2O5 2n24O2, कैलकुलेट द रेट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वही स्टेचोमेट्री, आप इसको ड्राइव करके लेकर के आएंगे बिल्कुल ऐसे जैसा आपकी सॉल्व एनसीईआरटी में। बस एक काम करना है, जो आपके सेट में वैल्यू दे रखी है 0.625 वो लगाना है। यहाँ पे कितनी है 512, बस इसको कर इसी हिसाब से आप अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम बचा लेता हूँ, आपको बात समझ में आ गई ना कि कौन सा वाला क्वेश्चन उन्होंने दिया है। 26 देखेंगे, राइट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज, कितनी बार ही क्वेश्चन, तीसरे साल क्वेश्चन डिक्टो रिपीट हो रहा है, हालांकि एक आध कंपाउंड चेंज किया है, इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड हाइड्राइड से दे दिया इस बार, अदरवाइज सेम ही है। तो साइनोहाइड्रिन बनाएंगे, ब्रोमीन वाटर से आप क्या बनाएंगे, ग्लूकोनिक एसिड बना लेंगे, और ये पेंटा एसाइलेटेड ग्लूकोज बन जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में आपको मालूम। 27 राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में स्ट्रक्चर आपको बनाया है, इतना आसान क्वेश्चन है देखिए, है ना, जो छोटा अल्काइल ग्रुप है उसके साथ आ ही जाएगा, यानी क्लीवेज वो होगी जो कि स्टेबिलिटी को लीड करेगी। तो ये आपका ओ एच आ जाएगा और सी एच थ्री आई बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप तो सी एच थ्री ही है, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। कंसंट्रेट HNO3, लीजिए साहब, पिक्रिक एसिड फिर पूछ लिया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो डैश पर, तीनों पे क्या लगा दोगे, NO2 ग्रुप लगा दोगे, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। डबल डबल क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए, एमसीक्यूज में भी आ गया, यहाँ भी आ गया। डाटा तो और भी था पूछने वाला, लेकिन कोई बात नहीं, आपके तो आसानी है, इसी को एग्जामिनर बोलते हैं, उसकी मर्जी है भाई, जो चाहे पूछे। ये आप देख पा रहे हो, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट ही है, ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, साइक्लोहेक्साइल है ना, साइक्लो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहलाएगा, और प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। जिन बच्चों ने बनाया होगा मुझे लगता है ऐसा बन जाना चाहिए, यहाँ पे ये CH2OH आ जाएगा, फिनाइल मिथेनॉल बन जाएगा, सॉरी सॉरी, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, और बना के देखिएगा, मुझे लगता है ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूं मैं, आपको पूरा पेपर क्रॉस चेक आप कर पाओ। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजोइक एसिड क्यों नहीं जाता। सीधा सा आंसर है, बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बस इस पे नंबर मिलने वाले हैं। SCHO मोर रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा है, कार्बन कार्बन के अराउंड कम है SCHO में, तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। सी देखते हैं, विनाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द कार्बोक्सिलिक एसिड शुड डिक्रीज, ये आपके पास डाटा दिया हुआ भाई, ये डाटा आपको दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, decrease the acidity of corresponding carboxylic due to resonance, but on the contrary it increases the acidity, बिल्कुल बढ़ाएगा, क्योंकि जो विनाइल ग्रुप है, आपको अगर याद हो, विनाइल ग्रुप में इस तरह से पाई बॉन्ड रहता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका विनाइल ग्रुप है, रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट करेगा नो डाउट, लेकिन क्या है ना, रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये जो कार्बन है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से कार्बन कैसा हो गया, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई है, तो इसलिए इसका जो इस स्ट्रक्चर को और ज्यादा स्टेबिलाईज कर देगा, है ना। तो दो बातें यहाँ रहती हैं, मैं आपको वो लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए मुझे भी लग रहा है मुझे पढ़ लेनी चाहिए एक बार, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, उसमें होल्ड किया हुआ है, मैं एक बार रुकिएगा। हाँ देखिए, इसमें इन्होंने बना के भी दिखाए स्ट्रक्चर, जरा आप अपनी निगाह को मेरी बातों में लगाइए, मतलब निगाह का मतलब कान अपनी मेरी बातें सुनने में लगाइए, मैं जरा वो पिक्चर ले रहा हूँ रेजोनेंस वाली, जो कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है बढ़िया से, एसिडिक करेक्टर से पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा, फिर और अब फिर पूछ रहे हैं एक बार, तो एसिडिक करेक्टर बड़ा फेवरेट होता जा रहा है, पिछली बार ग्रुप दिए थे इन्होंने कार्बोक्सिल ग्रुप में, ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तक पहुंचे हैं, मैं थोड़ा तेजी से बढ़ जाता हूँ। देखिए काफी लोगों के जो इम्पोर्टेंट थे कुछ काम नहीं किया, जिसने कंप्लीट चैप्टर पढ़ा है उसको ही बात बनी, देखिए आ गया बटाटा, देखिए इसी में देखिए, आप एनसीईआरटी में देखिए कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है।
कह रहे हैं डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप सच एज phenyl or vinyl to the carboxylic acid increases the acidity of corresponding carboxylic acid contrary to the degree respective to resonance shown below. क्या दिया है? दिस इज बिकॉज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। जो मैं बात आपसे कह रहा था वही बात इन्होंने भी लिखी है, मतलब इन्होंने जो लिखी है वही मैंने आपको बताई, वेरी सॉरी, है ना। तो जो हम बात कर रहे थे वही यहाँ पर आ रहा है कि दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टू विच कार्बोनिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड। ठीक है, तो जो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये जो दोनों कार्बन से कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ये लाइन आपको लिखनी थी, बना देते स्ट्रक्चर तो क्या बात थी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रही है पिक्चर, बच्चे ने मुझे भेजी, मैंने वैसे ही यहाँ ले लिया है, लेकिन आप कोशिश करें, मैं आपको आंसर तो आपको पता, पेपर तो आपके पास भी होगा। लेट अस सी डी, सेक्शन डी में हम पहुंच गए। सेक्शन डी को सब बच्चे देखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ CFT एक्सप्लेन द TiH2O होल 6 Cl3। तो भैया टी का एटॉमिक नंबर यहाँ दिया हुआ है, क्या लिखोगे? इसी आर्गन 4s2 3d1 3 हो जाएगा बेटा ना। स्कैंडियम तो हो गया 21 आपका, D1 D2 हो जाएगा, D2 हो गया, चलो 3 ये बाद में कर लेंगे। यहाँ पे जो मेरा कहने का मतलब ये था, टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप फाइंड करेंगे ना, तो +3 का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से चले गए, एक यहाँ से चला गया, तो इट इज लेफ्ट 3d1, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये जो देखिए कोऑर्डिनेशन में कितना है, 6 है, तो जाहिर सी बात है ऑक्टेट्रा वाला फिगर आप बनाओगे, T2G और EG, यहाँ पे आप G लगा सकते हो कि सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है, तो इस तरह से आपको T2G और EG, यहाँ जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, डिलीटानेशन में जाएगा। तो ये इसका आंसर, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G1 अंडरगोज डी ट्रांजिशन, और इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, कलर्ड होगा। इसी का रीजन आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो ये भी आपको देखो ही बता देते हैं। ये जो एनर्जी गैप है, द एनर्जी गैप बिटवीन टॉप ऑफ द T2G एंड बॉटम ऑफ द EG, ये कहलाता है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और अगर आप टोटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो तो डेल्टा ओ से आप इसे एक्सप्रेस करते हैं, ये बात आपको लिखनी थी। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर इसका, अच्छा बी में चॉइस दी है, प्लीज मेक इट ए नोट, चॉइस बी में दी है बेटा, ये पूरे क्वेश्चन में चॉइस नहीं है, केवल बी वाला जो पोर्शन है इसमें चॉइसेस हैं, है ना। तो जिन्होंने साफ साफ लिखा बी फर्स्ट, बी सेकंड, या तो बी, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, बी का, एक मिनट देखते हैं चॉइस में कैसे किया है। ये ए हो गया, बी का फर्स्ट और बी का सेकंड, चॉइस तो बी में ही है भाई, क्योंकि नीचे फिर सी स्टार्ट हो रहा है ना। लेकिन उनका ये तरीका मुझे लगता है कंफ्यूजिंग हो सकता है, बी फर्स्ट बी सेकंड की जगह इनको फर्स्ट फर्स्ट ही लिखना चाहिए था, या सिंपली बी लिख के छोड़ दे, जब एक ही क्वेश्चन है बी लिख के छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं भाई, पेपर सेटर है, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऐसा कर सकते थे तो कंफ्यूजन शायद कम होता। नेक्स्ट देखते हैं बी का सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा ओ एंड पी हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड अ वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर डेल्टा ओ की वैल्यू काफी ज्यादा पेयरिंग एनर्जी से तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और अगर डेल्टा ओ की वैल्यू कम है देन द पेयरिंग एनर्जी, तो वो एक वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा, ऐसे बता सकते हैं। हाउ वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रियली ऑब्जर्व, देखिए थर्ड टाइम आ रहा है, 24 25 23 तीनों साल लगातार क्वेश्चन आया है, तो एक ही आंसर है भाई, बिकॉज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज लोअर, और इसीलिए क्या होगा, जब ये डेल्टा ओ डेल्टा टी की वैल्यू काफी कम हो जाती है तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी ना लोअर एनर्जी सबशेल से, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, अनपेयर्ड आएंगे, तो सीधा लाइन का आंसर है ड्यू टू लो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अमाइंस की पिक्चर काफी ब्लर है, जल्दबाजी में बच्चे ने भेजी है, पर थैंक्स, और उसको देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन पेपर तो है, सेट नंबर 3 की बात चली, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग इथेनोइक एसिड टू मिथेनामाइड। तो पहले इथेनोइक एसिड रिएक्शन अमोनिया से कराओ, हीट करो, अमाइड मिलेगा। जहां कहीं भी कार्बन का नंबर जहां भी आपका ज्यादा से कम हो रहा हो तो बिना हॉफमैन ब्रोमाइड की बात नहीं बनती है आपके, है ना।
तो मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ क्योंकि पिक्चर ब्लर है थोड़ा सा, अदरवाइज तो आप मेरी बात भी समझ जाते। तो जिनके पास सेट 11 नहीं है और देख रहे हैं इस चीज को, तो वो भी इसको देखें। पहले अमाइड बन जाएगा आपका CH3CONH2, और फिर हॉफमैन ब्रोमाइड लगाइए, NaOBr लगा दो, या NaOH+Br2 कर दो बेटा, तो ये मिथेनामाइन तुम्हारा बन जाएगा। दिस इज फर्स्ट पार्ट। देन प्रोपेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो पेंटेन, राइट। प्रोपेन नाइट्राइल का मतलब हो गया आपके पास 1 2 और ये 3, प्रोपेन नाइट्राइल से 1 अमीनो प्रोपेन। अच्छा जी, तो आप इसका रिडक्शन करा दो, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। LiLH पर हमारा कौन सा खर्चा हो रहा है लिखने में, ठीक है ना। बनाएंगे तो देखेंगे, अभी तो फिलहाल मतलब लेबोरेटरी में बनाएंगे तो देखेंगे, अभी तो कोई खर्चा कोई ना हो रहा है। तो ये हमारे पास आ गया प्रोपेनामाइन, और इसका अब आप एल्काइल हाइड्राइड सिलेक्शन करा दो। क्या बोला है आपने, 1 अमीनो प्रोपेन ही तो बन गया भाई, 1 अमीनो प्रोपेन तो बन गया, बस ये बोले, राइट। तो इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट, वाई इज पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज मोर। तो ड्यू टू रेजोनेंस, ऐसा भी लिख सकते हैं, इन एनिलीन द NH2 ग्रुप हैज हाईली एक्टिवेटिंग, बहुत हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जिसकी वजह से जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है वो तेजी से रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो जाते हैं, और इसका बेसिक करेक्टर क्या हो जाता है, कम। और जिसका बेसिक करेक्टर कम, उसका पीके भी कैसी होगी, ज्यादा होगी, वही और लिखी है। और मिथाइलामीन में प्लस आई इफेक्ट रहेगा, जो बेसिक करेक्टर को बढ़ाएगा, और पीके की वैल्यू कैसी आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। हाँ, पी की वैल्यू कैसे आएगी, कम आएगी, बेसिक रेट ज्यादा होगा तो पी की वैल्यू कम आएगी। फिलहाल हमसे ये पूछा व्हाई इज पी की वैल्यू एंड इज मोर, तो बस आपको ये लिखना है कि ड्यू टू रेजोनेंस, अभी अगर आप वर्ड लिख देते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ एनिलीन और नाइट्रोजन एटम which decrease the basic character, and hence the pK value will be more for aniline, where is no such resonance is observed in case of methylamine. Arrange the following in increasing order of their basic strength. तो आपको मालूम है सोल्यूशन है, हाँ एक्वा सोल्यूशन में भी इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए तो और आसान हो गया, किसी ने गलती की नहीं होगी। तो एक्वा सोल्यूशन की बात करें, मिथाइल का केस हो तो 2 3 और 1 रहता है भाई। तो सबसे आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, तो सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा, 2 का हो जाएगा, CH3 होल ट्वाइस NH, आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो सबसे बाद में ये जाएगा। उसके बाद फिर आपका इसका होगा 3 का होगा इसके बाद, और सबसे कम किसका होगा, प्राइमरी का होगा, CH3NH2। मैंने आपको कहा है भाई आप साइन वाइन ना लगा कर, मुझे आपकी एबिलिटी पे भरोसा है पूरा, है ना। तुम्हें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो जो अपने मन की बात है प्रधानमंत्री जी की तरह एरो पे लिख दो तुम। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, साइन लगाने से बचा करो आप लोग। विच गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो बस बना दो। पहले में रिडक्शन हो जाएगा, NO2 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, NH2, बाकी रिंग ऐसे ही रहने वाला है। और फिर तो डाइहाइड्रोटाइजेशन है ही, है ना। तो रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आप बना देंगे। सबने ही सही किया होगा ये तो मुझे लगता है। नेक्स्ट सेक्शन ई देखते हैं भाई, लास्ट सेक्शन पे पहुंच गए हो, जरा तेजी से स्पीड बढ़ा लेते हैं, क्या है देखें सेक्शन ई में। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी दिया था इन्होंने। तो एक बार तो तुमसे पूछा है कि भाई ऐसा बनाओ स्ट्रक्चर जो C5H10O का, जिसमें कैनिजारो रिएक्शन दे पाए। भाई कैनिजारो तो दे पाए, लेकिन ध्यान ये रखना है कैनिजारो रिएक्शन वही आपके एल्डिहाइड दे पाएंगे जिनमें कि अल्फा कार्बन पर H ना हो। तो देखो भाई ये वाला हो गया, अल्फा कार्बन पर H ना हो, तो ये हो गया, 5 कार्बन हो गए, वो आ गया, वो सब हो गया। रिड्यूसेस टॉलरेंस इन एंड हैज अ कायरल कार्बन, लो भाई, और इन्होंने कह दिया कायरल कार्बन चाहिए। तो भाई अगर अगर टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करा तो एल्डिहाइड ग्रुप तो होगा ही होगा, और कायरल कार्बन चाहिए तो कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स सेटिस्फाइड होनी चाहिए। लीजिए कर दी, ये कार्बन कायरल हो गया आपका। गिव्स पॉजिटिव आइटोफॉर्म टेस्ट, लीजिए सर, और आइटोफॉर्म टेस्ट चाहिए तो मिथाइल कीटोन होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपकी बात बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इसी का सेकंड पार्ट भी है।
ऐसे बना देंगे नंबर 70 में 70। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, क्लेमेंजा रिडक्शन आ गया, जिंक अमलगम से कराइए कार्बोनिल ग्रुप का CH2 बन जाएगा, इटार्ड में क्रोमाइल क्लोराइड से कराइए इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो आपका CH3 अगर बेंजीन पर होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ मिथेनॉल। देखिए कहीं कहीं उन्होंने ये बात देखी है कि डिफिकल्टी लेवल जो 15% बढ़ाना होता है वो बढ़ाया है, क्योंकि ये जो मिथाइल हेमी एसिटल का जो बात है ये बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहीं डिस्कस ही नहीं कर रहे थे ना। तो मिथाइल हेमी एसिटल मिथेनॉल बनाना है, तो देखो मिथेनॉल को पहले ले लेते हैं। मिथेनॉल, बच्चे आजकल ज्यादा यूट्यूब देखते हैं ना, तो एग्जामिनर ने कहा ठीक है, अच्छा ये नहीं, ये बात नहीं हो रही है, ये वाला रखता हूँ मैं। तो ये देखिए, ये मिथाइल हेमिस्टल ट्राइएसियल गैस की प्रेजेंस में होगा, तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव कार्बन पर, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव, और H जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ये बन जाना चाहिए आपका H, तो ये ऐसे ही रहा, ये OH आ गया और ये आ गया आपका OCH3। ठीक है जी, ये मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ मिथेनॉल आ गया। 2 NH2 ग्रुप, ये तो मालूम है आपको, रेजोनेंस की वजह से जो कार्बोनिल ग्रुप के नियरेस्ट NH2 ग्रुप होगा उससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, और एडिशन कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक। तो जो NH2 ग्रुप दूर प्रेजेंट है वो आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जाता है। ये जो पास वाला है ना, ये वाला जो बिल्कुल से लगा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप से, इससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा और इसको क्या बना देगा, लेस इलेक्ट्रो, सॉरी लेस न्यूक्लियोफिलिक। जबकि ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है इस पर एज इट इज रहेंगे नाइट्रोजन पर, ये रेजोनेंस में नहीं जाते। इसको आप बना के स्ट्रक्चर लिखेंगे, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इथेनॉल ले लो भाई, CH3 CH2 OH, ऐसे नंबर नहीं देंगे भाई, पूरा आपको अल्कोहल, पूरा का पूरा आपको एल्डिहाइड आना चाहिए। ये बन गया भाई, PCC से CrO3 भी ले सकते थे। अब कराओ भाई इसका एल्डोल कंडेंसेशन, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन जाएगा, एल्डोल जिसे बोलते हो, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। क्यों भाई, इसका अगर एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे कॉन्क NaOH की प्रेजेंस में, सॉरी डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा। कंसंट्रेटेड तो आप कैनिजारो में लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन करते हैं भाई, ये देखिए क्या है, क्रोमिक एनहाइड्राइड है आपका, ऑक्साइड है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा आपका। ठीक है जी, राइट द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम पिथैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद अमोनिया, तो पिथैलिमाइड बन जाएगा। पहले दोनों COH की जगह CONH4 फिर हीट करेंगे तो पिथैलेमाइड, और फिर पिथैलिमाइड, एक बार और हीट करेंगे तो H2O निकल जाएगा, और ये वाला स्ट्रक्चर फाइनली आपने बनाया होगा, देखो गैब्रियल पिथैलेमाइड सिंथेसिस में बनाया होगा ना आपने। गैब्रियल पिथैलेमाइड की जो शुरुआत करते हो वो वाला कंपाउंड पूछना भाई तुमसे, ये वाला। एक एवरेज बच्चा जो है उसके लिए डिफिकल्टी लेवल कहीं कहीं इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन जिस बच्चे ने भी एनसीईआरटी अच्छे से की हुई है उसको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, जिसकी कमांड है, सिलेबस ही कितना रह गया, 10 चैप्टर्स है हार्डली, तो ये स्ट्रक्चर फाइनली बन के आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 क्वेश्चन में भाई लोनर्स इक्वेशन आ गई, ये तो सबने किया होगा बढ़िया से, मैं फाइनली बता देता हूँ आपको, आपने ऐसे लगाना चाहिए था इक्वेशन को, ई सेल ही फाइंड करवा रहे होंगे आपसे, हाँ EMF ही निकलवा रहे हैं। E0 कैसा आएगा, RH माइनस LHE, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज एनोड, जहाँ ऑक्सीडेशन वो एनोड, काफी लोग पढ़ा देते हैं जहाँ एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऐसा नहीं होता है, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा उससे एनोड लिया जाएगा, कैथोड। ठीक है, तो अब आप समझ गए, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड है आपका, और ये कैथोड है। तो ये RH, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, RH माइनस LHE करोगे तो प्लस का आ जाएगा 0.76 माइनस टू 0.0591 अपॉन एन, कितना आएंगे 2 ट्रांसफर हो जाएंगे लॉग। अब देखो भाई जेरिन 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है तुम्हारे पास, दे रखी है 0.1, तो ऊपर ही ले लो तो
और स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, मोलर कंसंट्रेशन तभी होती है जब स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हो। और डिनोमिनेटर में 0.1, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायर जाएगा 0.01 की पावर 2। तो ये एक जीरो बढ़ा लूंगा, 10 हो जाए। कितना आसान क्वेश्चन दिया, देखिए तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। फैराडे सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फैराडे फॉर द रिडक्शन। तो ऊपर भी Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr3 पॉजिटिव है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +6 आ जाएगा। बचपन से निकालते हैं, मतलब बचपन से 11 से निकालते हुए आ रहे हो। और यहाँ कितना आएगा, +3 आएगा। 1 मोल है तो NF करके निकाल दो भैया। फैराडे के टर्म में बतानी है ना, और आसान कर दिया। 3F आंसर आपका हो जाएगा। 6F मत करना, क्योंकि 1 मोल Cr2O7 है ना। अच्छा नहीं, रुको रुको, 1 मोल Cr2O7 से Cr3 पॉजिटिव बनाना है। देखो ऐसा करते हैं ना, ये Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3 पॉजिटिव है। हमारा आंसर सही है, घबराओ मत, हमारा आंसर सही है। ये जो आता है ना कि प्लस, ये आ जाएगा आपका +6। ये कितना है, +3। अब बैलेंस करने के लिए क्या करते थे, तो ये 1 मोल जब है और इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, Cr3 पॉजिटिव में हो रहा है। तो कितने का आएगा डिफरेंस। एक बार 1 Cr6 से, एक बार 1 Cr3 पॉजिटिव, दोबारा में 1 Cr6 पॉजिटिव से 1, फिर से 3 पॉजिटिव, 6 का डिफरेंस आ रहा है। अब तुमसे 1 मोल Cr2O7 से Cr3 पॉजिटिव बोला है, तो थोड़ा सी एम्बिग्यूटी हो सकती है समझने के पार्ट पे, कि कुछ समझने की भैया, एक Cr3 पॉजिटिव बोला है और कुछ कहें कि भाई 1 मोल Cr2O7 से बोला है। तो दोनों ही केस में जैसा भी किया हो, आप पूरी बात अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ के नंबर दे देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ऐसा शो किया होगा और ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या रिडक्शन हो रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, गेन करने होंगे। ऐसा लिखा होता। या फिर अब वही वाली बात है, Cr2O7 2 नेगेटिव से तुम ऐसा लिखते Cr3 पॉजिटिव 1, हालांकि ये बैलेंस नहीं है। तो ऐसे में 1 मोल अगर ये होगा भी, तो भैया ये भी तो फिर 1 मोल ही होना चाहिए। तो अगर ये 1 मोल की बात करें तो यहाँ पे भी 3 होंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे। लेकिन बैलेंस अगर लिख पाओगे तो यहाँ पे भी 2 करने पड़ेंगे हमें। कोई बात नहीं, स्टेट द सेकेंड लॉ। अच्छा सेकेंड लॉ भी तो बताना है, तो जब आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो जो मास है डिपॉजिटेड, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, दैट इज Faraday's second law. How much electricity is required in terms of for reduction of 1 mole of Cr2O7 to negative to Cr3 पॉजिटिव। तो भैया 3 आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ना ऐसे, हमें ध्यान है। हमारी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ऐसा वाला ना, Fe2O3 से Fe बोला है शायद, Fe2O3 से FeO बोला है, ऐसा वाला क्वेश्चन है। तो उसमें यहाँ पे तो +3 आ रहा है, यहाँ पे +2 आ रहा है, तो 1 आंसर हो जाता है। लेकिन है ना, तो 3 पे ही आंसर आपको मिल जाएंगे। मैं एक बार क्वेश्चन देख लूँ, एक सेकंड लगता है, मेरे पास एनसीईआरटी ओपन है, मैं देख लेता हूँ। हाँ लो, एक बार देखते हैं इस तरह क्वेश्चन की क्या इन्होंने किया ट्रीटमेंट। ये देखिए, स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं तेजी से। देखिए यहाँ पे तो 1 मोल चलता रहा, इन्होंने पहली बार ऐसा किया है। जैसे Al2O3 को करते हैं ना, 2L3, जैसे कि हाँ ये देखिए आ गया। तो FeO से 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3 किया है। तो यहाँ गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे एटम्स जो है वो दोनों के, इधर Fe के +1 है, तो 1 मोल आंसर, 1F आंसर आ जाता है। तो हम 3F के लिए जाएंगे, है ना। 1 मोल ऑफ Cr2O7 से एक Cr3 पॉजिटिव बोला इन्होंने, हालांकि बनेंगे दो, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, उसमें कंसीडर कर लिया जाएगा अगर आपने दोनों बातें शो की हुई हैं। केवल Cr3 पॉजिटिव बोला है, 1 मोल अगर है, तो 1 मोल Cr2O7 में तो भाई 2 एटम्स हो रहे हैं आपके पास, 2 मोल्स हो रहे हैं। तो +3 या +3 दोनों को कंसीडर कर लेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा लग रहा है
तो यहाँ तो क्लियर है, यहाँ पे लेफ्ट में एटम एक ही है, राइट में एटम कितने, दो, यहाँ पर FeO से Fe2O3 में, इस वाली बात हो रही है। यहाँ पे हम आंसर 1F देते हैं, ठीक है, तो वहां पे 3F में आंसर देंगे। आई होप सबने अच्छा ही किया होगा, कोई बात नहीं, लगा देखिए क्वेश्चंस भी खत्म हो गए, 22 नहीं अभी 33 भी है भाई। एक क्वेश्चन और हमारे पास, लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन और कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m KCl। तो इसको भी मैं आपको करके दिखा, थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपके लिए बिल्कुल क्लैरिटी से लिख देता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी यू नीड टू फाइंड आउट, कापा आपको दिया है 2.48 इंटू 10⁻², ऐसा आपने किया होगा, इंटू 1000, और ये देखिए आपने वैल्यू लगा ली होगी कंसंट्रेशन की 0.20 या 0.2। जब ये आ जाएगा तो लैम्डा सी बाई लैम्डा नॉट सी, लैम्डा नॉट सी का डाटा दिया है इन्होंने, देखो भाई के पॉजिटिव दिया, Cl नेगेटिव, दोनों को आप ऐड कर देना, ये आपको लैम्डा नॉट सी देगा, लैम्डा सी आपको यहाँ से आके अल्फा मिल जाएगा, कोई यूनिट नहीं होती अल्फा की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना। अच्छा जी, लो और भी न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द डेल्टा Rg नॉट ऑफ द गिवन, तो -NFe नॉट सेल लगाओगे भाई, -NFe नॉट सेल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है, 2 Mg2 पॉज Cu2 पॉज Cu, तो माइनस नंबर ऑफ मोल्स 2 F96500 तुम्हें बताया हुआ अभी इन्होंने। ई नॉट निकालना है, RH माइनस LHE, ये RH और ये LHE, देखो रिडक्शन तो यहाँ हो रहा है ना, Cu2 पॉजिटिव Cu RH, तो 0.34 माइनस माइनस 0.37 करेंगे, प्लस का हो जाएगा, जो वैल्यू है यहाँ रख दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ सेल इज अ मरकरी सेल, तो आपको मालूम है मरकरी सेल कैसा है आपका, प्राइमरी सेल है, ये वाली बात जानना चाह रहे हैं। कह रहे भैया क्या एडवांटेज है, एडवांटेज ये है इट गिव्स अ कांस्टेंट वोल्टेज बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व the concentration of ions in the overall reaction. Account for the following Mn2 positive, Mn2 positive देखो तो एक ही बात आती है, D5 is half filled and extra stable, actinide show wide range of oxidation state, इसकी वजह तो आपको मालूम होनी चाहिए कि भैया 5F 6D and 7S have highly comparable energies, ट्रांजिशन मेटल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनका पार्शियली फिल्ड होते हैं, अन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होता है, और इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, ज्यादा। लेकिन एग्जामिनर बड़ा खुश होगा अगर आप लिखेंगे इट दे हैव वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और उसका रीजन अन पे इलेक्ट्रॉन्स, इंटरेस्ट टुवर्ड्स ओवरलैपिंग। चलिए, या स्ट्रॉन्ग मेटेलिक इंट्रैक्शन भी कोई बच्चा लिखेगा तो दे देते हैं बिकॉज ऑफ अन पे इलेक्ट्रॉन, नो इशू। कंप्लीट करो भाई, कंप्लीट करो, आदेश आ गया, कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक रिएक्शन, करते हैं जी। ये SO4 2 नेगेटिव हो जाने वाला है, और ये MnO4 नेगेटिव मीडियम एसिडिक है, तो Mn2 पॉजिटिव बनेगा और साथ में जल बन जाएगा। MnO4 नेगेटिव, ये देखिए दोबारा रिपीट हो रही है, 24 में 23 में पूछी गई है, न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम है ये आपका, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है MnO4 negative will be reduced to MnO2 and this I negative will be oxidized to iodate ion, और मुझे लगता है बैलेंस करते तो शायद OH नेगेटिव यहाँ आ जाता है, वो देख लीजिएगा आप जैसे भी हो। कंप्लीट करनी है भाई, बैलेंसिंग नहीं करनी है, क्या बात है, तो आसान कर दी चीजें आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी का चॉइस में आ गया है क्वेश्चन नंबर 33 के, अरेंज द फॉलोइंग, नेम द टू एलिमेंट 3d3 विद थर्ड आयनिशन है भाई। हाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, तो मुझे लगता है एक तो जिंक हो जाएगा, इन्होंने ये नहीं कहा नॉन ट्रांजिशन बताओ, कह रहे 3D सीरीज का हो तो जिंक लिख दो, और Mn का तुम्हें ध्यान है, आर्गन 3d5 4s2 दो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, थर्ड तो फिर ज्यादा हो ही जाएगी, तो MnZn सही है, बढ़िया, क्रोमियम भी चला लेंगे। आउट ऑफ KMnO4 K2NO which one is a paramagnetic and why, तो K2MnO4 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा मुझे लगता है, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसमें अनपे इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसलिए यहाँ पे +7 है, 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। Mn का क्या होता है, आर्गन 3d5 4s2 7 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है, वो आर्गन वाला इसी आ जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा इलेक्ट्रॉन D1 वाला बचेगा, तो K2NO4 इज पैरामैग्नेटिक, वाई तो बता दो अनपे इलेक्ट्रॉन है। राइट एनी टू कॉन्सिक्वेंशियल एंड कॉन्ट्रैक्शन,
सर्कोनियम हाफने का साइज सेम हो जाते हैं, या सेकंड और थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज के साइज एक हो जाते हैं, कुछ भी अच्छा सा लिख दो आप। हाउ डू यू प्रिपेयर पोटेशियम मैंगनेट फ्रॉम पायरोल्यूसाइड ओर? तो भैया पहले MnO2 का ट्रीटमेंट कराओ। किससे कराओगे? KOH से, इन प्रेजेंस ऑफ KNO3, तो पोटेशियम मैंगनेट ही बनेगा। ठीक है, बस एक ही स्टेप लिखना है आपको, MnO2 प्लस KOH प्लस O2 एरो पे KNO3 लिख दो, K2MnO4 बना दीजिएगा, बात बन जाएगी। वाई इज दिस एबिलिटी टू ऑफ ऑक्सीजन मोर एंड देन फ्लोरीन टू स्टेबलाइज? ऐसे क्वेश्चन पढ़ने का ना, पढ़ने का ही मन नहीं करता, देखते समझ में आ जाता है कि हाँ भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। और आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, जबकि फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकता। लीजिए, खत्म हो गया पेपर। तो आई होप जो भी आपके आंसर जो भी आपने लिखे हैं, होप फॉर द बेस्ट। एग्जामिनर से रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई अच्छे से अच्छे मार्किंग करें और आप लोग जो है आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिले। चलिए, जिन बच्चों का भी सेट नंबर 3 उनको शेयर कर दीजिए, आप भी देख लीजिए और वो लोग भी अपना क्रॉस चेक कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।